A very good morning, everyone, and welcome to the Uthan session today. So today we are in the third session of the ongoing series, which is Enthusiasm, Fuel for Excellence. So we have Sangeeta Didi with us to take over the session. Didi, welcome, and over to you. Om Shanti. Om Shanti, good morning. And good morning to all of you. Welcome also. And all are enthusiastic, happy, and feeling blessed. So every time the thought which I have, what is the quality of the thought? So what do you feel, all of you? Very enthusiastic? Okay, आना है ऑफिस में, रूटीन है, क्या करिए, पापी पेट का सवाल है और कोई चॉइस नहीं है. Now, these could be the thoughts also when you start for the office. कैसे thoughts है? So everyone enthusiastic, wonderful. And everyone did the homework also. Homework क्या था? कि every याद है ना homework तो कि हर इसको blessing में change करना है मुझे. हर thought को blessing में change करना है. This was the. So how many of you did this homework? I will close that day's uncomfortable emotional pattern, convert them into blessing that night. आज नहीं, आज याद आया दीदी का तक के सारे. And I will daily water the seeds with determination and ready for any sudden change. So, how many of you remember this homework? Acha, one. What about others? Every day at least. Kabhi kabhi yaad aaya. How many of them can raise the hands? Yeah. So, see, this is finally, if in the school we used to do the homework, who used to be, किसको फायदा होता था? Who was to be getting that benefit? हमको ही मिलता था वो benefit, खुद को ही फायदा होता है. इसी तरह जीवन के ये होमवर्क करने से हमें बेनिफिट होने वाला. हमें बहुत अच्छा लगेगा if we just do this part of this homework. It is just taking care of yourself. Every day we take care of ourselves. खाना खाएंगे ना, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे. These are the little bit of the things which we take care. So why do we take care? So that we don't have to suffer. Health problems no हो eventually, gradually. तो इसलिए हम take care करते हैं. Doing the homework means taking care of your mind, taking care of your soul. So taking care of the body, taking care of the soul. That soul would be very enthusiastic always. तो चलो बहुत अच्छा. तो हमने enthusiasm. So starting the day's work also. Everything with enthusiasm. नहीं तो otherwise, because if I don't change the pattern, emotional pattern, कल तक कुछ हुआ, अभी तक वो माइंड में है, मतलब रात को ही it has to be changed, converted into a blessing. So the moment I convert it into blessing, what is actually happening? I am because it's in the conscious mind. जब हम कर रहे होते हैं जो भी, तो अगर उसको उस समय चेंज नहीं किया और उसी थॉट में सो गए, कैसे होगा पता नहीं, होगा नहीं होगा. सो नाउ इट गोज. वो अभी कॉन्शियस लेयर के बाद सबकॉन्शियस लेयर में चला जाएगा वो माइंड. और फिर वंस इट इज इन द सबकॉन्शियस माइंड, इट बिकम्स मोर. जैसे वो कांटा ऊपर था, अभी वो कांटा और नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा? It will become difficult to get it out.
तो अब जैसे ही सुबह उठेंगे, नॉट सो हैप्पी, सब वही बातें, कैसे होगा, क्या होगा। तो अगेन उसको और डीपर कर दिया, बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड इज अवेक 5 minutes बिफोर यू स्लीप and 5 minutes after you get up. So now it is gone in the subconscious. अब जो सबकॉन्शियस में चले जाती है, वो कहाँ कहाँ मुझे हॉन्ट करती है? एनीथिंग गॉन इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो ऑटोमेटिक वो कुछ बात हो गई, पता नहीं होगा नहीं होगा, बिकॉज इट इज देयर इन द सबकॉन्शियस। हम कहते हैं मेरे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, दैट फियर इज इन माई सबकॉन्शियस माइंड, दैट इंसिडेंट विच हैपेंड दैट डे is so the result of that incident is still within me. I'm not able to forget it. So what is happening? जो कंक्लूजन हमने रीच किया था ना उस इंसिडेंट का, वो सबकॉन्शियस में है। तो कभी भी कोई बात में तुरंत याद आ जाते, रह रह के याद आ जाते। So this is the problem with the subconscious. This is the benefit also, and if not taken care is the problem subconscious में। तो एक बार वो सबकॉन्शियस में चला गया, फिर वो कल के पूरे दिन के वर्क में भी आता रहेगा, बीच बीच में पता ही नहीं चलेगा, और बीच बीच में आता रहेगा आता रहेगा। हम कहते पता नहीं क्यों ऐसे थॉट्स आते, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे विचार आते, क्यों मैं ऐसे सोचती हूँ। डू वी एवर क्वेश्चन फॉर आवरसेल्फ? That's all the thing which have gone in my subconscious mind. Why? Because the same pattern was followed. I never cleaned it that same day itself. So therefore, we have to be very conscious, to be always enthusiastic. Convert everything that has happened or will be happening. So which has happened, if not good, a blessing for the next day. And which has happened very good, gratitude. This is how, this is called leading life with enthusiasm. तो इसलिए सबसे पहले as we understood कि पहले था contentment, हमें we have to be contented कि जो भी हुआ अभी तक, I appreciate whatever has happened. It had to happen. It was to happen. It will happen. So what I am right now, and I am sure next will be better. तो contentment, क्योंकि जो हुआ है, as we said, यही होना था, यही सत्य है, और यही होना चाहिए। This is called contentment. This only had to happen. एक बार ना one brother was, एक रास्ते में एक भाई ना पीट रहा था किसी को जबरदस्ती, मतलब ऐसे पीट कंटिन्यूसली। अब जो सामने वो किसी ने देखा, ही वॉज अ सज्जन पर्सन, अच्छा था, उसको बहुत दया आई, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे वैसे, और उसको छुड़ा दिया। छुड़ाया, वो भाग गया, भागा, बोला अरे तुमने क्या किया, ये चोर था, ये गोल्ड चेन लेके भाग गया। तो समटाइम्स जो हो रहा है, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया अच्छा करने के लिए, फिर भी नहीं हुआ, दिस हैड टू हैपन। इसलिए क्या बोलते हैं, होनी को कोई टाल नहीं सकता, यही सत्य है, कंटेंटमेंट। Unless and until there is contentment, I cannot have enthusiasm for the next minute, because that old incidents which are unresolved in my mind, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, कितनी बार कहा, फिर हो गया, मुझे पता था, these questions, ये रिजॉल्व करना बहुत जरूरी। तो ये रिजॉल्व हो जाता है कि ओके, नाउ व्हाट टू डू। तो one is contentment, and second is, next minute is learning. These are two important. I learned. क्या learn किया? Learning. Now suppose आपने किसी को कुछ शिक्षा दी, नहीं करो, ऐसे मत करो,
और फिर भी उसने किया, फिर भी गलती हुई, और करके फिर वो प्रॉब्लम हुई। अब वो प्रॉब्लम आपको भी फेस, बिकॉज एज अ फैमिली मेंबर यू ऑल्सो हैड टू फेस, ही इज ऑल्सो फेसिंग। नाउ व्हाट कुड बी द लर्निंग, व्हाट विल डू? अभी ना कुछ बोलने का फायदा नहीं है। नाउ द वे आई विल इवन एक्सप्रेस दैट कि मुझे कुछ बोलने का फायदा है, इट इज सो, इट इज वेरी हैप्पीली कि तंग आके हम बोल रहे हैं मुझे कुछ बोलने का फायदा नहीं है, तंग आके बोल रहे, हैप्पीली तो बोल ही नहीं रहे। मतलब मैंने खुद ही रिजॉल्व नहीं किया उसको अपने माइंड से। अभी इसमें क्या था, मेरे को अब मैं बोलूंगी ही नहीं, कुछ फायदा नहीं होता है, उसको जो करना है वही करता है। मैं, तो हमने क्या लर्न किया, आई शुड विच आई वॉज, मैं उसको अच्छा बोलती थी, राइट बोलती थी। सो नाउ आई स्टॉप स्पीकिंग दैट राइट, वाई? बिकॉज वैसे ही करता है। लर्न क्या करना चाहिए था, इसमें मेरी क्या गलती थी जो मुझे लर्न करना है? लर्न ये नहीं करना था कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लर्न ये करना था बोलने के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूं। माई एक्सपेक्टेशन वॉज अ मिस्टेक, माई बोलना वॉज नॉट अ मिस्टेक। सो दैट फॉल्ट ऑफ माई माइंड हैज टू बी करेक्टेड, नॉट कि मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं। दिस इज कॉल्ड एंगर, इट इज नॉट कॉल्ड लर्निंग। एंड देन देखा भी नहीं जाता, वी माइट इवन से ऑल्सो, और फिर अपने आप पर गुस्सा आता है, पता नहीं मैं क्यों नहीं सुधरती हूँ, मैं क्यों फिर बोल देती हूँ जब मेरे से नहीं देखा जाता। बोलो, जितना बोलना चाहिए जरूर बोलो, of course with not that anger, but at the same time with no expectation. This is called learning. So learning, when I learn from the past, I'll be enthusiastic for doing the new in the future. And suppose कभी कभी enthusiasm lose होता है कि कोई हम किसी का कुछ ओपिनियन, नाउ सपोज देर इज द रेज ना, पीछे शिव बाबा की रेज दिख रही है, कितनों को अच्छी लग रही है? किसी को अच्छी लग रही होगी? अच्छा, अच्छा, यहाँ तो सबको अच्छी लग रही है। ओके, सपोज एक फ्लावर ही है सामने, ये यहाँ है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई को, हाउ मेनी विल से वेरी नाइस? कोई कोई कहेगा बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई कहेगा बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई कहेगा ओके फाइन। कोई कहेगा क्या है, रोज रोज वही फ्लावर्स है। ओके, आर देयर ओपिनियन ओके? एवरीवन्स ओपिनियन आर ओके? अपना अपना ओपिनियन है। डज द फ्लावर चेंज बिकॉज ऑफ द ओपिनियन? इट डजंट चेंज। तो अपना अपना ओपिनियन है, वो अपनी खुशबू फिर भी देगा, अपनी ब्यूटी जितनी है वो फिर भी देगा। सो एवरीवन हैज देयर ओपिनियन टू वॉट एवर वी से, वी डू। कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा ऐसा, इट्स फाइन। मेरा ड्रेस है, सबके 10 ओपिनियन है, 2000 है, 100 लोग हैं ऑफिस में, 100 के 100 ओपिनियंस होंगे। आर दे रॉन्ग? देयर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन देयर संस्कार, एंड अकॉर्डिंगली दे विल से फाइन। बट should I change? Does the sun stop their rays? Does the flower stop that beauty? Does this flower stop their fragrance? वो वैसा ही है। तो इसी तरह जो भी कोई कह रहा है मुझे, उसका अपना ओपिनियन है, बट एंड इट इज बेस्ड ऑन देयर संस्कार।
आई डोंट हैव टू स्टॉप. अगर मुझे सबका ओपिनियन मैटर करना था, सो दैट एवरीवन शुड हैव अच्छा बोले, तो मुझे जब ड्रेस खरीदने जाना था तो कितनों को लेके जाना चाहिए था? ये सारे 100 लोग जिनका ओपिनियन मुझे बहुत मैटर कर रहा है, सबको लेके जाओ. एंड देन यू, so therefore it is everyone is having their opinion, fine, but I take the feedback, और उस फीडबैक में उसके कमेंट्स हम लेंगे, पर उसमें अगर अच्छा है, ग्रेटिट्यूड. किसी ने अच्छा कमेंट किया, वेरी मच ग्रेटिट्यूड. कोई अच्छा नहीं भी किया, ओके फाइन, ब्लेसिंग फॉर दैट सोल. इफ इट्स रॉन्ग आई टेक इट एंड इम्प्रूव इट, बट नॉट कि ऐसा क्यों, ये क्यों, नहीं कहना चाहिए. हमारा एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा कम हमारे क्वेश्चन वाला नेचर से होता है. एंड दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज. Therefore, spirituality means I have the answers of everything what is happening to me. Even कि पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही है, I have that answer also. Why is she saying पता नहीं? क्योंकि उसका अपना, she doesn't know. I will never say पता नहीं क्या हो गया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं वो ऑल ऑफ अ सडन क्यों चेंज हो जाती है. There is no पता नहीं in my vocabulary, then only I'll be enthusiastic. जहां क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां enthusiasm stop हो जाता है. तो therefore one is to be very having the opinion and understanding that everything based on their संस्कार. और दूसरा है always disciplinary. जितना लाइफ में डिसिप्लिन होगा ना, हमारा हैप्पीनेस ऑलवेज बढ़ता रहेगा. कोई भी चीज की मर्यादा, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीवन में ऑलवेज खुशी रखती है. जब मर्जी आए कर लो, जब मर्जी आए नहीं करो. व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखो, अर्लियर we all had grown up in the family, at least in that family जिसमें डिसिप्लिन था. and many times it was forced, the discipline was forced on us. मतलब मुझे करना ही है. 5 मिनट अगर पूजा नहीं करी तो आपको खाना नहीं मिलेगा. हाउ मेनी ऑफ अस आर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली? ये करना चाहिए. अच्छा, उस समय वो अच्छा लगा था हमको, खाना नहीं मिलेगा. आज हमको अच्छा लगता है कि हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन आई. अभी वन कपल हैड कम, कहते हम पूजा में बैठते हैं, लेकिन हमारा बच्चा ना पूजा में नहीं बैठता है. क्यों? क्या करे? उसकी चॉइस. वाई? आपको चॉइस दी थी क्या? हमको चॉइस मिली थी क्या कि जब तुम पूजा नहीं करोगे तब तक खाना करो या नहीं करो, ऐसी कभी चॉइस दी? चॉइस मिली थी हमको. सो वी वर ऑफ दैट जनरेशन कि वी डिडंट हैव एनी चॉइस एंड वी डिड इट, एंड बिकॉज ऑफ विच हमको क्या आदत पड़ी है, अभी क्या हो गया कि चॉइस दिया जा रहा है, बिकॉज इट्स देयर चॉइस. हर चीज में उसकी चॉइस, उसकी चॉइस. तो क्या हो रहा है, 2-3 साल की एज से उसके चॉइस के अकॉर्डिंग काम दिया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है. 15 साल की एज में आप कोई बात बोलो और वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, व्हाट ही विल से, मेरी चॉइस, मैं जैसे करूं. और फिर जब शादी हो जाती है तो फिर भी क्या है, उसकी चॉइस. जॉब चाहिए, उसकी चॉइस. खाना खाना है, उसकी चॉइस. अब वो जो शादी होके वो स्पाउस आती, वो भी कौन सी कैटेगरी की है? यही चॉइस वाली स्टाइल की कैटेगरी की है.
तो वो भी अपना जीवन कैसे जिएगी? अपनी चॉइस से। एंड दिस इज द रीजन सिंपल थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड. People are heading for a divorce because always choice. One couple had come, कहाँ बच्चे को रात को लेट आया बेटा, एंड इतना ही बोला कि ऐसे क्यों लेट क्यों आया, क्योंकि लेट भी आया पार्टी से एंड कुछ सब्सटेंस भी कुछ लिया, तो उसको थोड़ा सा कह दिया कि क्या लेट क्यों आए, और कुछ बोला भी होगा. टेरेस पे गया. व्हाट्स द रीजन? कभी ना सुनने की आदत नहीं है. दिस इज द रीजन. लेट people, let children learn to listen no. जिन बच्चों ने कभी ना सुनी नहीं होगी, वो बच्चे कैसे होंगे? आप जस्ट इमेजिन करो. तो जब उनके चॉइस का कोई बात नहीं होती लाइफ में, क्या हो रहा है? दिस इज द वे. खत्म करो. देयर इज नो पॉइंट लिविंग द लाइफ. अगर पहले से ना ना सुनता तो ठीक है, मत करो, नहीं करना है, नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस. तो क्या हो जाता है? ऐसे समय पे थोड़ा रो के चुप बैठ जाता. बट वॉट वी डिड, वी अलाउड देम टू डू. तो इसलिए दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसिप्लिनेरियन. तो हर चीज में अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, लेट इट बी एज अ फोर्स ऑल्सो. और व्हेन, बिकॉज इट इज घर की मर्यादा है, आपको करना होगा. जब उसको ये आदत पड़ती है, आज हमारे पास चॉइस नहीं था एंड देयरफॉर वी बिकेम डिसिप्लिन्ड. हमको जल्दी उठकर स्नान करने की हैबिट है, जल्दी उठने की हैबिट है, बड़ों को कुछ नहीं बोलने की हैबिट है. तो अब उन बच्चों को तो चॉइस है, ये करो या नहीं करो. उनके बच्चों को, वो वाली जनरेशन के पास तो कोई चॉइस नाम का कंसेप्ट ही नहीं है ना. जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड. सो देयरफॉर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल. तो जितना लाइफ में डिसिप्लिन्ड होगा, एंड कोई भी डिसिप्लिन्ड लाइक मर्यादा. जैसे पटरी पर कोई रनिंग रेस होता है ना, उसके रूल्स बताया जाता है, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग फिर आप कितना रेस में आगे जाते हो, दैट इज द अचीवमेंट. आपको कोई रूल्स ही नहीं और आप रेस में आगे गए, इज नॉट एन अचीवमेंट. यहां से यहां तक जाना है, इधर नहीं देखना है, इस तरफ नहीं करना है, इतना सा लाइन के बाहर चले गए तो नॉट कंसीडर्ड, इतना सा चुप खड़े हो गए नॉट अलाउड. नो, देयर आर सो मेनी रूल्स एंड देन यू डू इट, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट. सिमिलरली जीवन में मर्यादा होना और उस मर्यादा में चलते हुए आगे बढ़ना, being very, and then that enthusiasm goes on, that is the achievement. हम सोचे कि एको मेरे जैसा सब कुछ हो, एकदम विंटर्स भी मेरे जैसा हो, समर्स भी मेरे जैसा हो, ऑफिस भी मेरे जैसा हो. व्हाट इज हैपनिंग? मेरे की एडजस्टमेंट पावर बहुत कम होती जा रही है. और जिसकी एडजस्टमेंट पावर कम होती जाए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आई ऑलरेडी ऑलवेज सीन माई फैमिली, मेरे अकॉर्डिंग सब चलते हैं. आई ऑलवेज सीन माई पेरेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सब चलते हैं. एक्चुअली वॉट इज हैपनिंग? वन, द एडजस्टमेंट पावर इज लॉस्ट. सेकेंड, उन बच्चों को गुस्सा बहुत आता है. थोड़ा सा कोई मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोलते, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे दैट विद दैट पर्सन. मैं अपने घर में बहुत अच्छा. क्यों?
यहाँ सब मेरे अकॉर्डिंग है, वहां मुझे झुक के चलना पड़ता है, हम्बलनेस खत्म होती जा रही है। सो जीवन के जो सिद्धांत है जीने के, और वो चाम नहीं रहता है, इसलिए कुछ इतना सा 2-3 वन इंसिडेंट के उसको उसको डिमोटिवेट करती है। सेकंड और साइमल्टेनियस इंसिडेंट आ जाती है, उसको कंप्लीट एंथुजियाज्म लॉस्ट। थर्ड अगर इंसिडेंट आ जाए तो हेल्थ इश्यू, और अगर फोर्थ साइमल्टेनियस इंसिडेंट आ जाए तो बस अब तो लाइफ इज ऑफ नो यूज। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डिसिप्लिन। तो एंथुजियाज्म भी, बट एट द सेम टाइम डिसिप्लिन भी। सो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल helps a lot for the, or third is, fourth is always, because uh, when there is enthusiasm, actually उसमें when there is a disciplined lifestyle, so चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये करना है, क्योंकि मेजॉरिटी वी विल डू इट, majority have the sanskar, we will do whatever everyone else will do, only few people have that sanskar, even if no one does it, we will do it. This is called leadership, and this when it is with me, हम सोचते हैं समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे अगर हम ऐसे कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना चाहिए, मैं करूंगी। इफ आई लीड माई लाइफ विद दिस लाइफस्टाइल, क्या होगा, दूसरे भी, जैसे इस सर्कल में मैं हूं और अभी उस सर्कल में कोई नहीं है, हम सोचते अगर समाज बोलेगा ना फिर हम करेंगे। अब उस सर्कल में कोई इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि कोई नहीं है, पीपल वेट कर रहे हैं। अगर एक जन जाएगा उस सर्कल में, वो क्या करेगा, दूसरों को भी अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली इफ आई डू इट इररिस्पेक्टिव, जो करना है वॉट एवर, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। आई विल डू इट, कोई करे नहीं करे, बिकॉज आई हैव गॉट द बेनिफिट, एंड देन आई विल बी द वन टू इंस्पायर, एंड दिस इज द वन हु कैन टेक चैलेंजेस। तो एंथुजियाज्म तब बना रहता है, द पर्सन इज रेडी टू टेक चैलेंजेस। जहां हमने सोचा नहीं नहीं एवरीथिंग मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग होगा, वो एंथुजियास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि चैलेंजेस तो आ रहे हैं। नाउ देयर इज फॉगी। अब जिसको खुशी नहीं है सपोज ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की, जैसे ही थोड़ा फॉगी हुआ क्या करेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट दे विल स्टॉप इज, है ना। और अगर छुट्टियां बहुत बची है तब तो पे क्या करेंगे, नहीं बाबा अभी सो जाओ, छोड़ो। लेकिन जो वो थोड़ा सा, इन अदर वर्ड्स, इतना सा चैलेंज देखा, दे विल विथड्रॉ देमसेल्फ, दे विल स्टॉप। बट जो एंथुजियास्टिक होगा ना, चाहे फॉगी हो कुछ भी हो, मुझे जाना है, मुझे करना है, दैट डिटर्मिनेशन एंड एट द सेम टाइम एंथुजियाज्म। तो इसलिए उसमें एंथुजियाज्म वाला कोई भी बात में रुकेगा नहीं। एंड इफ दिस काइंड ऑफ जी लाइफ मेरी होती है तो क्या होगा, आज मुझे फॉग ही स्टॉप कर दे, ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, रजाई से उठने का। हमारे में बहुत एक अच्छी कहावत है, रजाई छोड़ोगे तो राजाई मिलेगी। अपने आप को तुम इंडिपेंडेंट बनाते हो,
दैट इज इम्पोर्टेंट। जब हम अपनी पूरी सुविधा के अकॉर्डिंग ही सब करते हैं तो अपने आप को डिपेंडेंट करते जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी वी ऑलवेज विल बी एंग्री, डिस्कम्फर्ट, क्योंकि वो चीज नहीं हुआ तो मुश्किल। तो कोई करे नहीं करे, जिसमें एंथुजियाज्म होगा ना, बहुत बड़ी सारी चीज होगी, उठाना है। अगर डिपेंडेंट होगा, जब तक वो दूसरा नहीं आएगा आई कैन नॉट डू इट। और जिसमें डिपेंडेंसी नहीं है और एंथुजियाज्म है, तो इतना वेट वाली चीज भी होगी वो तुरंत उठा सकता है, और उठा के रख भी देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। व्हाट इज इट? इट इज दैट independent nature. So I don't have to be dependent on people's sentiments, what people will say, करते करे नहीं करे। I feel this is right, I will do it, I will enforce that doing even in my family. Let us enforce discipline in our family members. मर्यादा की लकीर बंधा ले, और ये मर्यादा ही उसकी सुरक्षा कवच। उसको चलने आएगा, कोई चीज नहीं भी उसके अकॉर्डिंग है तो भी वो चलेगा। तो हम, क्योंकि जहां मर्यादा हम नहीं सेटअप करते हैं, हम ऑलवेज हाँ हाँ, ओके 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 करके बच्चों को कमजोर बना रहे हैं। और जो कमजोर होगा वो किसी की बात को, कोई भी अपनी चीजें जो अपने अकॉर्डिंग नहीं होगी, उसको देखते ही उसको अटैक आता है। एक रेड लाइट देखते आजकल के टीनेजर क्यों इरिटेट हो रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द रेड लाइट? एक इंटरनेट नहीं चलता है, इतना उनको गुस्सा आ जाता है। एक जन ने तो अपना कंप्यूटर कितनी देर तक नहीं चला तो पूरा लैपटॉप को फेंक दिया। व्हाट इज दिस नेचर ऑफ? दिस डिस्क्राइब्स कि दे हैव द लीस्ट, द सोल इज हैज द लीस्ट पावर इन इट। It just cannot take anything not their way. It cannot adjust. So therefore, जितनी मर्यादा होगी, जितनी डिटर्मिनेशन होगी, उतनी एंथुजियाज्म होगा। और एंथुजियाज्म मीन्स व्हाट? यस, लास्ट मिनट डिडंट हैपन, फाइन, आई विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज माय मिस्टेक्स इफ एट ऑल, तो ताकि मैं इस बार अभी करेक्ट करूं। लेकिन अभी के लिए मेरे में उतना ही क्लियर पिक्चर भी है और उतना ही क्लियर होप है। होप भी नहीं, विल से कंफर्मेशन है, नहीं ये अभी ना बीमारी फुल ठीक हो जाएगी, हो नहीं सकता नहीं ठीक होगी, बहुत अच्छे से ठीक होगी। तो मुझे नेक्स्ट मिनट के लिए पूरी कंफर्मेशन है। हमारी एक बहन थी, उसको यंग एज थी, 25-26 की, डेडिकेटेड सिस्टर। तो उनको कुछ पैरालिटिक अटैक कुछ हुआ, तो बहुत ऑल ऑफ अ सडन हो गया, तो एक साइड पैरालिसिस, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा मूवमेंट में फर्क हो गया। अब 20 मे बी 30s की एज के थे, और उसमें पूरी डिपेंडेंसी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, खाना भी, वॉशरूम भी जाना है तो साथ में चाहिए। सो इट्स अ बिग, आई मीन इमोशनली व्यक्ति बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। तो बहुत ट्राई कर लिया, क्योंकि ऑल काइंड ऑफ पैथीज ट्राई कर दिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा एक्सेट्रा, नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने, मेडिटेशन की पावर थी, परमात्मा से जैसे मेडिटेशन में बातें करने लगे कि बाबा आपको नहीं चाहिए, मेरे से सेवा नहीं लेनी है, आपको अगर नहीं लेनी है तो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस लाइफ, और अगर लेनी है तो यू यूज योर पावर। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यूज टू बी देयर, कि यूज दिस बॉडी, ऐसे करके।
तो एक बार उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाए, तो ओनली बिकॉज वन हाथ चलता था तो शी कुड मेक सम पिक्चर्स, तो उन्होंने डिजिटल कुछ अच्छे पिक्चर्स बनाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक बहुत बड़ा फेयर ऑर्गेनाइज किया। वो पिक्चर्स बहुत बड़े अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल पिक्चर्स थे। तो एंड उस फेयर में हमारी चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई। तो एंड नो वन कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पिक्चर्स, सो शी ओनली वाज टू एक्सप्लेन, but that she cannot move because whatever she did was just sitting and थोड़ा बहुत करके सो जाती थी, that kind of way she did the whole सेवा। तो दादी आई और and she was to explain। तो दादी told that I will go with her only, and दादी ने उसका हाथ पकड़ा, and she also doesn't know how she got up, the power of the meditation, और पूरा it was 1 hour, और पूरा चल के she showed the whole fair, पूरा आराम से चली। एंड उस दिन के बाद से लेकर आज 20 years हो गए, नो प्रॉब्लम ऑफ द बॉडी। व्हाट इज दैट? तो क्या था वो? अपने जीवन से जो हताश हो जाता है ना, डिमोटिवेट हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो है वो उसको यूज करता रहता है, और मेडिटेशन के पार से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। देयर इज कॉल्ड मैजिक। तो इसलिए enthusiasm means you're always open to many beautiful avenues of life, a new experience। तो आज एक बीमारी भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। So challenges will change into opportunities. This is called being always enthusiastic। तो क्या करना है? तो कल लास्ट टाइम का हमें कंटिन्यू करना ही है। फर्स्ट कि every day I'll close that day's uncomfortable emotional pattern, convert them into a blessing। that night वो तो करते रहना है। always clear, the next minute is very good, but at the same time ready for any sudden change, means my mind will be perfectly thinking। कोई चेंज हुआ, ठीक है, नाउ इस चेंज में मुझे क्या करना है? दिस इज कॉल्ड परफेक्टनेस। तो ये होमवर्क है, सिंपल है। इज इट ओके? इज इट एसेंशियल? एक है इंपॉर्टेंट है। इज इट नेसेसरी? हाउ मेनी से इट इज नेसेसरी? इज इट इंपॉर्टेंट टू डू दिस काइंड ऑफ होमवर्क? एंड इज इट अर्जेंट? इंपॉर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है ना, तो भी हम साइडलाइन कर देते उस काम को। जब तक उसको अर्जेंट नहीं समझते हम कभी उसको यूज नहीं करते। तो व्हाट शुड आई थिंक? इट्स वेरी अर्जेंट, आई विल डू इट राइट नाउ। ओके, तो 1 minute साइलेंस करते हैं। अपने आप को सब बातों से एकदम फ्री कर। I am a powerful soul, pure soul, very energetic। And I have a connection with the Supreme। उसकी किरणें मेरे ऊपर सदा बरस रही है। सुप्रीम एनर्जी का साथ मेरे साथ है। With this combined feeling,
अब मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए, आया है, पेपर है, बट वेरी एंथुजियास्टिक। आया है, चला जाएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, there is a solution and it is always for my best। सब कॉन्शियस में मैंने फिट कर दिया है, इसमें भी कुछ अच्छा है। With this beautiful thought, I come down in the office, visualizing the office। कोई अच्छा है, कोई सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, बट यस, एवरीथिंग इज फॉर माई बेस्ट। ओम शांति। Thank you, Didi, and thank you everyone for joining in today. Let us complete the homework. We understand that it is very urgent and immediate at this point of time. So let us complete the homework and meet the next week for the fourth session. So thank you everyone. Have a good day. Om Shanti.